Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are good and doing well. So students, today we're gonna start our workbook of chapter number 1, which is science skills. In the previous lecture we have covered the exercise of chapter number 1 and today is the workbook of chapter number 1. So the first question in workbook is state whether the following statements are true or false. For this, firstly we will read the statement and then according to the statement we will mark it whether it's true or false. First statement is a tape measure is more accurate than a ruler. वो आपको कहना है कि टेप measure जो है वो रूलर से ज़्यादा एक्यूरेट है, तो इट इज़ फॉल्स. समटाइम्स रूलर जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज़ कम्पेयर टू टेप measure. Second one is scientific information is called data. So yes, this is true. You can predict nothing from a line graph. This is wrong. We can predict. The line graph is basically the one through which we can even measure the values which we do not want to. So this is false. We can predict data or we can predict result from line graph. Statement number 4 is a hypothesis is what you expect to happen in scientific investigation. True. Yes. हाइपोथेसिस वो होती है जो हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले बनाते हैं कि मे बी इट मे बी फॉल्स और इट मे बी रॉन्ग. सो दिस इज़ ट्रू. हाइपोथेसिस इज ऑलवेज करेक्ट. नो, दिस इज़ फॉल्स. हाइपोथेसिस may always not be correct. They must be wrong or they may be right. Question number 2 is choose the correct option. Which of these instruments would you use to measure the mass of an object? Option A, balance. On the Celsius scale, the boiling point of water is 100 degrees Celsius and the freezing point of water is 0 degrees Celsius. So C is the correct option. Statement number 3. The standard units used for measurement are called SI units, which is known as System International Units and used worldwide. Statement number 4 is how would you most accurately time one swing of a pendulum? कि आप एक swing pendulum का एक swing किस तरह measure कर सकते हैं. So option C is the correct answer. Time 10 swings and divide by 10. हम 10 swings को count करेंगे कि वो कितना time लेंगी और then उसको 10 से divide करेंगे तो हमारे पास एक swing का answer आ जाएगा. Statement number 5 is which of these variables cannot be controlled easily? डेट, टेम्परेचर, टाइम और वॉल्यूम. तो हम वॉल्यूम को भी इजीली चेंज कर सकते हैं, टाइम को भी कर सकते हैं, टेम्परेचर को भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट कंट्रोल डेट. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज द डायग्राम शोज 10 पीसेज ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट जम्बल्ड अप. आपको उन्होंने डायग्राम्स दी हुई हैं जिसके अंदर उन्होंने आपको लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं जो एक दूसरे के साथ मिक्स हुए हुए हैं. आपने इन सबको एक दूसरे से सेपरेट करना है और बताना है कि ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं. नंबर 1 पे ये है हमारे पास पिपेट, हमने इसको लिख दिया. नंबर 2 पे हमें जो नज़र आ रहा है वो है टेस्ट ट्यूब, लिख दिया हमने. नंबर 3 पे वी हैव स्टिरर जिससे हम मिक्सिंग कर रहे हैं. दिस इज़ द स्टिरर. नेक्स्ट वन इज़ मीटर रॉड विच इज़ यूज टू measure something. Other one is balance scale on which we measure weight. This one is china dish which is used for crystallization processes. This one is suction flask which is also known as vacuum flask. This one is round bottom flask in which we provide heat to some substances or some liquid. And this one is beaker in which we add some liquid while performing some experiment. So students, the 10th one and the last one is this thermometer which is used to measure some temperature. Next, coming towards the question number 4, which is fill the gaps in the table using these words or symbols.
आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं ऊपर, आपको नीचे एक टेबल प्रोवाइड किया गया है जिसमें कुछ उन्होंने वैल्यूज़ टर्म्स लिखी हुई हैं और कुछ टर्म्स मिसिंग हैं। अगर आप फर्स्ट मेजरमेंट में देखें तो उसका यूनिट उन्होंने मीटर लिखा हुआ है। अब आपने इसके यूनिट को देखते हुए बताना है कि ये कौन सी मेजरमेंट है। आपको पता है कि यूनिट मीटर जो है वो किस मेजरमेंट का यूनिट है, वो लेंथ का है, तो हमने यहाँ पर इस यूनिट को देखते हुए लेंथ लिख दिया। नेक्स्ट हमने मीटर का जो सिंबल है वो स्मॉल m होता है, हमने यूनिट सिंबल में स्मॉल m मेंशन कर दिया। नेक्स्ट वन इज़ मैस, इसका यूनिट मिसिंग है। हमें पता है कि मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, हमने किलोग्राम लिखा, और किलोग्राम का यूनिट है kg, स्मॉल kg। नेक्स्ट वन यूनिट भी मिस है, मेजरमेंट भी मिस है। क्या चीज़ दी गई है, हमें उसका सिंबल दिया गया कि उसका यूनिट का क्या सिंबल है। मीटर क्यूब उसका सिंबल है, इट मीन्स ये किसका यूनिट है, ये क्यूबिक मीटर का यूनिट है। और क्यूबिक मीटर यूनिट कौन सी मेजरमेंट का है, क्यूबिक मीटर आपको पता है कि हम हमेशा वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, सो हमने मेजरमेंट में वॉल्यूम लिख दिया। नेक्स्ट मेजरमेंट उन्होंने आपको टाइम दी हुई है और उस यूनिट का सिंबल एस बता दिया है। हमें टाइम और इस सिंबल दोनों को देखते हुए इस बात का पता चल गया कि इसका यूनिट क्या है, सेकंड। नेक्स्ट वाले में उन्होंने आपको यूनिट दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस और उस यूनिट का सिंबल डिग्री सेल्सियस दिया, और आपको पता है कि हम हमेशा टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, तो इसकी मेजरमेंट है टेम्परेचर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वर्कबुक। The remaining workbook will be done in next lecture inshallah. Up till then, take care. Allah Hafiz. Thank you so much.